Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel English with Ghazala. Friends, today I have selected the word gloomy for my vocabulary. Firstly, I am going to tell you its English meanings. Dark, dismal, grim, sad, depressed or dull. और उर्दू में इसकी मीनिंग होते हैं अंधेरा, वीरान, तारीख, नाखुशगवार या मुहीब या गमज़दा। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो लफ्ज़ ग्लूमी है, हम इसे मुख्तलिफ सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन यूज़ द वर्ड ग्लूमी फॉर अ पर्सन। If a person is not feeling well or if a person is sad, we can say that this person is gloomy or this person's mood is gloomy. And we can also use the word gloomy with a situation. If a situation is not good, if a situation is grim or depressed, we can say that the situation is gloomy. For example, we can say that the entire world's economy was gloomy amid coronavirus. और ग्लूमी जो है ये हम किसी प्लेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if we cannot see properly a thing which we cannot see very properly, we can say that this place is gloomy. For example, the church is gloomy, the graveyard is gloomy. Friends, अभी आप पे क्लियर हो गया होगा कि we can use the word gloomy with a person, with a situation or with a place. Now I am going to tell you its grammatical position. It is adjective, and when we say gloomily, it can be say as a adverb, as an adverb. Friends, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो लफ्ज़ gloomy है, अगर हम इसे gloomier बोलेंगे तो it will become comparative degree, and if we say gloomiest तो it will become superlative degree. I hope फ्रेंड्स कि इसके उर्दू इंग्लिश मीनिंग, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन और इसका यूज़ आप पे क्लियर हो गया होगा. Now we head towards its examples. Its first example starts with this: My cousin was gloomy because his best friend had moved away. इसकी उर्दू एक्सप्लेनेशन है कि मेरा जो कज़न है वो बहुत डिप्रेस था, वो बहुत सैड था क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो मूव अवे हो चुका था, उसने अपना घर चेंज कर लिया था. इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है: My cousin was very sad or dismal because his best friend had changed his house and moved to another different place. The meaning of move away, it can give us three meanings. First meaning of move away is change address. Second meaning is move to different place, and third meaning is left one's old place of residence or went elsewhere. यानी अपना एड्रेस चेंज कर लेना, किसी दूसरी जगह मूव कर जाना, अपनी रिहाइश छोड़ के किसी दूसरी जगह पे सेटल हो जाने को बोलते हैं मूव अवे. सेकेंड सेंटेंस इज: द रीजन डोरिस वॉज नॉट पॉपुलर बिकॉज वॉज दैट शी ऑलवेज हैड ग्लूमी अपीयरेंस. यहाँ में बताया गया है कि डोरिस जो है वो ज़िंदगी में पॉपुलर ना हो सकी, वो नाकाम रही क्योंकि उसकी अपीयरेंस हमेशा ग्लूमी होती थी. वो हर वक्त नाराज़ रहती थी, सैड रहती थी, अनहैप्पी थी, इसलिए वो ज़िंदगी में पॉपुलर ना हो सकी या कोई सक्सेस हासिल ना कर सकी. एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज: Doris could not get success or fame in her
life because she always has a grim or depressed face. Third and final sentence is John's beach is not so beautiful on a gloomy day. कि जॉन्स बीच जो है वो जो है दुनिया की खूबसूरत तरीन बीचेस में उसका शुमार होता है, लेकिन जब ग्लूमी डे हो, जब क्लाउडी डे हो या रेनी डे हो तो इसकी खूबसूरती एकदम डिसअपियर हो जाती है, ब्लर हो जाती है या वैनिश हो जाती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम आते हैं। John Beach is a staggering or amazing beach and it is also visited by thousands of visitors and honeymooners, but its beauty or charm gets vanished or disappear in a cloudy or rainy day. Now friends, we head towards its synonyms. Its first synonym is dark, dismal, grim, अनप्लेजेंट या बैड, यानी अंधेरी जगह के लिए हम डार्क यूज करते हैं। डिस्मल भी जो है वो भी ग्रिम या ग्लूमी के मीनिंग देता है, अनप्लेजेंट और बैड भी, यानी ऑल दीज वर्ड्स आर गिविंग अस द मीनिंग ऑफ gloomy. We can replace the word gloomy with all these words. And its antonyms are bright, sunny, well lit. यानी जब एक चीज डार्क होती है तो उसके एंटीनम्स जो होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। डिस्मल को जो है वो सनी रिप्लेस करता है। ग्रिम या अनप्लेजेंट को हम वेल लिट से यानी खूब रोशन और ब्राइट जगह के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। हैप्पी, चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक और अपबीट। अपबीट के मीनिंग्स भी फ्रेंड्स होते हैं रोशन ख्याल, चेयरफुल या पुर उम्मीद के लिए। नाउ वी हेड टुवर्ड्स इट्स एंड। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसके स्ट्रॉन्ग कोलोकेशन बताती हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग कोलोकेशन का मीनिंग होता है कि वो लफ्ज जो हमेशा ग्लूमी के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ग्लूमी वेदर, यानी एक रेनी या क्लाउडी वेदर। ग्लूमी व्यूज यानी वो व्यूज जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, जो ब्राइट या क्लियर नहीं होते, जो प्लेजेंट नहीं होते, जो क्लियर नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं ग्लूमी व्यूज। ग्लूमी आउटलुक, अगर किसी का नजरिया ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक न हो, शानदार न हो, तो तब हम कहते हैं कि ही हैज ग्लूमी आउटलुक। ग्लूमी प्रिडिक्शन, जब हमारी प्रिडिक्शन या पेशन गोई जो होती है वो ज्यादा पुरुमीद या होपफुल नहीं होती, तो तब भी हम यूज करते हैं ग्लूमी प्रिडिक्शन। ग्लूमी एटमॉस्फेयर, ग्लूमी एम्बियंस और नाखुशगवार माहौल। ग्लूमी मूड, ग्लूमी स्काइज, ग्लूमी न्यूज एंड ग्लूमी परफॉर्मेंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्मल परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स ये थी आज की वोकेबलरी जो शुरू हुई थी लफ्ज़ ग्लूमी से। आई होप कि आपको इसके उर्दू इंग्लिश मीनिंग्स, ग्रामेटिकल पोजीशन, सेंटेंसेस की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वोकेबलरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।